Next question. Question from next topic. In fact, heat engine, refrigerator, and second law of thermodynamics का question start करेंगे. First question: a Carnot engine absorbs an amount Q of heat from a reservoir at an absolute temperature T and rejects heat to sink at temperature of T by 3. The amount of heat rejected is. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं इसका ट्रिक भी दूंगा आपको. Will first solve the question. Carnot engine absorbs an amount Q. If you remember, heat absorbed QH, जिसको तुम Q1 भी बोलते हो, इसकी वैल्यू कितनी है? Q. From रिजर्वायर मतलब हॉट रिजर्वायर एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर T. एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब मेजर्ड इन केल्विन स्केल. तो हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर TH या फिर T1 ये कितना है? T. एंड रिजेक्ट्स हीट टू द सिंक. सिंक टेम्परेचर TC या फिर T2 इट इज T/3. The amount of heat rejected is. So how do you find out amount of heat rejected? Is very simple. If you remember, of course क्या होना चाहिए? कैसे solve करोगे? Efficiency equals to 1 minus T2 by T1 या फिर efficiency itself is equals to 1 minus Q2 by Q1. Correct? ऐसे करेंगे ना? सही है ना? You are supposed to find out Q2. तो efficiency का formula पता होना चाहिए. You should know what is the formula of efficiency. So you are supposed to find out Q2. Use this part of the equation. मतलब you are just supposed to use these two. अब इसको तुम जब यूज करोगे तो 1 और 1 क्या हो गया? कैंसल आउट. माइनस T2 बाई T1 इक्वल टू माइनस Q2 बाई Q1 मतलब T2 बाई T1 इक्वल्स टू Q2 बाई Q1. Then you have Q2. Q2 equals to T2 by T1 into Q1. T2 कितना है? T by 3 और T1 T and Q1 is Q. तो TT कैंसिल हो गया. आंसर क्या आएगा? Q by 3. आंसर is Q by 3. Of course yes. अब मैंने बताया था, I told you that I'll give you a trick. बहुत सिंपल सा ट्रिक है. Very simple. You know. What do you know? Do you remember? Heat is proportional to temperature. तो Q2 by Q1 इक्वल्स टू T2 by T1. तो Q2 इक्वल्स टू T2 by T1. तो T by 3 और T और यहाँ पे Q1 शिफ्ट कर दिया तो यह आ गया Q. सिंपल ना. नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन. An ideal gas heat engine operates in Carnot cycle between 227 degrees Celsius and 127 degrees Celsius. It absorbs 6 into 10 raised to 4 calories. तो QH की वैल्यू आपको दी है. QH मतलब Q1 6 into 10 raised to 4 calories of heat at higher temperature. Amount of heat converted to work is. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. तो मुझे पहले बताओ what is source temperature, what is sink temperature from here. 227 हायर टेम्परेचर होता है सोर्स टेम्परेचर मतलब T1. 227 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना केल्विन? 500 Kelvin is a source temperature. And the sink temperature is how much? 127 degrees Celsius मतलब कितना? 400 Kelvin. Heat absorbed is Q1 which is basically 6 into 10 raised to 4 calorie. Good. आपको पूछा what is the heat converted to work? How much amount of heat is converted to work? क्या करेंगे? अरे तुमको क्या दिया पहले वो देखो ना. T1 T2 दिया है. इफिशियंसी मिल जाएगा. 1 minus T2 by T1 और efficiency is also work upon heat absorbed. Efficiency is work output upon heat input. Work output upon heat input. सही है. तुमको क्या पूछा है? वर्क. तुमको क्या दिया है? हीट एब्जॉर्ब. और क्या दिया है? T1 और T2. तो ये दोनों यूज कर लो. तो you have 1 minus T2 by T1 equals to work output upon heat input. तो 1 minus what is T2? 400. This is 500 upon heat is absorbed is 610 raised to 4. तो 1 minus 4 by 5. 1 minus 4 by 5 ये 0.8 है. तो 1 minus 0.8 this is 0.8. 4 by 5 is 0.8. तो 1 minus 0.8 is 0.2.
0.2 इक्वल्स टू W अपॉन 6 into 10 raised to 4। इसको शिफ्ट कर दो 1.2, तो 1.2 into 10 raised to 4 बराबर, राइट। या तो ऐसा करो या फिर सिंपल लॉजिक है। यहाँ ध्यान दो एक मिनट, यू हैव टू पे अटेंशन हियर। ये क्वेश्चन ना ऐसा ऐसा सॉल्व होता है ऑलरेडी। आंसर तो आ गया हमारा, आंसर तो आ गया, लेकिन क्वेश्चन पढ़ते वक्त ही आंसर आ जाना चाहिए था। व्हाट इज सोर्स टेम्परेचर 500, सिंक टेम्परेचर 400, एफिशिएंसी 1 minus T2 by T1 मतलब 1 minus 4 by 5 मतलब 1 minus 0.8 मतलब 0.2। 0.2 एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि जितना भी हीट एब्जॉर्ब किया था सिर्फ उसका 20% ही कन्वर्ट हुआ है वर्क में, करेक्ट। कितना हीट एब्जॉर्ब हुआ था 6 into 10 raised to 4, उसका 20% मतलब उसका 0.2 से मल्टीप्लीकेशन। तो 6 into 0.2 is 1.2 into 10 raised to 4, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। अब रिमेंबर 6 में से 1.2 इफ इट इज कन्वर्टेड टू वर्क, तो बचा हुआ 4.8 into 10 raised to 4 goes to the sink, rejected to the sink। Which of the following process is reversible? Isothermal compression। क्योंकि इफ यू रिमेंबर कोई भी क्वासी स्टैटिक प्रोसेस विच इज अ वेरी स्लो प्रोसेस बेसिकली दैट इज ओनली रिवर्सिबल। तो ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन इज नॉट रिवर्सिबल। रेडिएशन सन से हीट अर्थ तक आ गया, वापस भेज सकते हो क्या? नो, यू कैन नॉट सेंड बैक। इलेक्ट्रिकल हीटिंग ऑफ a nichrome wire, can you reverse the heat? No, you cannot। ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कंडक्शन, नो यू कैनॉट, क्योंकि कंडक्शन में हीट गोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर रीजन टू लोअर टेम्परेचर रीजन, बट देन लोअर टू हायर जाएगा क्या? नो। तो ओनली रिवर्सिबल प्रोसेस इज आइसोथर्मल कंप्रेशन। अगला क्वेश्चन, रिवर्सिबल प्रोसेस में यू शुड नो दैट द इंटरमीडिएट स्टेट शुड आल्सो बी द सेम। तो नाइक्रोम वायर में अगर तुम सोच भी रहे हो कि इफ वी कैन बेसिकली मेक दिस प्रोसेस रिवर्सिबल, बट ऑल द स्टेप्स विल नॉट बी सेम। तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड मतलब रिवर्स डायरेक्शन में पाथ सेम नहीं होगा। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अभी ये आई विल लिव इट फॉर यू एज एन असाइनमेंट, सारे क्वेश्चंस मैं करके दे रहा हूँ, ये गलत है। आई शुड नॉट बी डूइंग इट फॉर यू, तो यू शुड बी डूइंग फ्यू फॉर योरसेल्फ। और कुछ नहीं है, सिंपल सा है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। 4 स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट ऐसा पूछा है, तो आप लोग करोगे ऐसा एक्सपेक्टेशन है। इन अ साइक्लिक प्रोसेस वर्क डन बाय द सिस्टम एस। साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू इज 0, क्योंकि जहाँ से सिस्टम स्टार्ट हुआ था स्टेट, उसी स्टेट पे वापस आता है। सो इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स आर सेम। जब इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम हो तो डेल्टा यू टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज 0। इफ द टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज 0, देन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, लेकिन डेल्टा यू तो 0 था, तो डेल्टा क्यू क्या हो गया? डब्ल्यू। तो वर्क डन इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब इक्वल टू हीट गिवन टू द सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी। जितना हीट लिया पूरा का पूरा वर्क में कन्वर्ट कर दिया। वेरी गुड, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, क्योंकि फिर वापस से एंट्रोपी पे आ गया ना। तो अभी एंट्रोपी पे आ गए तो हम लोग सॉल्व करेंगे। वी कैन नॉट कीप ऑन स्किपिंग क्वेश्चंस ऑफ एंट्रोपी, वी विल हैव टू सॉल्व इट। अच्छा है, गुड, क्योंकि मैंने कल एंट्रोपी का फॉर्मूला बता भी दिया था, तो आई एक्सपेक्ट कि तुमको एंट्रोपी का फॉर्मूला याद है। द चेंज इन द एंट्रोपी ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस which went through an isothermal process from an initial state P1 V1T to final state P2 V2T is equals to, सिंपल सा क्वेश्चन है। चेंज इन एंट्रोपी पूछा है आपको, चेंज इन एंट्रोपी। हाउ डू यू फाइंड आउट चेंज इन एंट्रोपी? इट इज हीट सप्लाइड डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। एंड फॉर एन isothermal process, अभी मैंने बताया, अभी जस्ट लास्ट क्वेश्चन में बताया that for an isothermal process delta Q equals to W because delta U is 0. So therefore change in entropy delta S is W by T, and work done in an isothermal process, if you remember, is nRT log of final volume by initial volume। T और T cancel और n की वैल्यू 1, क्योंकि 1 मोल ऑफ गैस दिया हुआ है, तो यू हैव R natural log of V2 by V1।
तो R natural log of V2 by V1, that is option number D. So change in entropy के questions we will basically solve all these questions now. वापस से चेंज इन एंट्रोपी का एक क्वेश्चन होगा या एंट्रोपी का एक क्वेश्चन है व्हेन 1 किलोग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस melts to water at 0 degree Celsius. 1 kg of ice at 0 degree melts to water at 0 degree. The resulting change in entropy taking latent heat of ice to be 80 calorie per degree Celsius is. Simple question है. Simple. क्या पूछा है? Change in entropy. What is the formula of change in entropy? Delta Q by T. What is delta Q? M into L, mass into latent heat. क्यों? क्योंकि क्लियरली क्वेश्चन में ये बोला है 1 kg ऑफ आइस एट 0 डिग्री मेल्ट्स टू वाटर एट 0 डिग्री, मतलब जो भी हीट सप्लाई कर रहे हो दैट हीट इज यूज्ड टू ब्रिंग चेंज इन द फेस, और फेस चेंज के लिए ml ही लिखना पड़ता है. व्हाट इज मास? 1 kg? No, it is 1000 grams. बोलोगे why 1000 grams? Look at the units. Calorie is not SI system of unit. और आंसर भी देखोगे इसमें. तो आंसर में यूनिट्स चेक कर लेना. तो 1000 ग्राम्स, 1 kg 1000 ग्राम एंड लैटेंट हीट इज 80, वो भी कैलोरी में दिया हुआ है. गुड. देन और आंसर भी कैलोरी में है. डिवाइड बाय टेम्परेचर. व्हाट इज टेम्परेचर? 273. हाउ मच इज दिस? हाउ मच इज दिस? नियर अबाउट option B. Are you sure? A. अरे इट्स नॉट डिफिकल्ट. 1000 by 273, इसको 1000 by 250 मान लो. 1000 by 250 is 4 into 8 is 320. तो 320 से कम आएगा ना, क्योंकि नीचे 273 था. आई हैव टेकन 250, तो 293 के आसपास आना चाहिए. देख लो. यू हैव या फिर यू कैन ऑल्सो डू वन जा एंड काइंड ऑफ. तो एक काम करो, 1000 डिवाइडेड बाय 273 इंटू 80 कितना आ गया? 293. तो नो 293 ऑप्शन नंबर ए. सिंपल. नेक्स्ट क्वेश्चन. वापस से फाइंड द चेंज इन एंट्रोपी इन द फॉलोइंग प्रोसेस. 100 gram of ice at 0 degree melts when dropped in a bucket of water at 50 degree Celsius. Assume temperature of water does not change. So find the change in entropy in the following process. You have 100 gram of ice at 0 degree which melts when dropped in a bucket of water at 50 degree Celsius. Change in entropy. तो change in entropy कैसे find करोगे इस केस में? How do you find out change in entropy in this case? How will you find out change in entropy? Yes, आइस से पहले वाटर बनेगा. मतलब आपको आइस के केस में एंट्रोपी कितना है वो इनिशियल एंट्रोपी लेना पड़ेगा, फिर वाटर के केस में एंट्रोपी कितना है वो फाइनल लेना पड़ेगा, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. तो यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज फाइनल एंट्रोपी माइनस व्हाट इज इनिशियल एंट्रोपी. हाउ डू यू फाइंड आउट इनिशियल एंट्रोपी? बाय द वे, हाउ विल यू फाइंड आउट इनिशियल एंट्रोपी? इनिशियल एंट्रोपी
वही तो अभी बता रहा था मैं, Q अपॉन टी, डेल्टा Q बाई टी या फिर Q बाई टी. व्हाट इज Q बाई टी? ml बाई टी. व्हाट इज मास? हाउ मच इज द मास? 100 ग्राम. ओके. व्हाट इज latent heat? You don't know. You don't know. Do you know what is latent heat? गुड. टेम्परेचर तो पता है. टेम्परेचर तो बेसिकली यू सी आई इज एट 0, मतलब 273. लैटेंट हीट. तो एक काम करते हैं, अभी हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया ना, सेम था ना, कितना लैटेंट हीट? 80 था ना. लेके देखते हैं क्या आंसर आता है. विल सी. देखते हैं. ये हो गया इनिशियल. फाइनल एंट्रोपी विल बी अगेन डेल्टा क्यू बाई टी. और ये टी इनिशियल, ये टी फाइनल, ये टी इनिशियल, ये टी फाइनल. एम एल अपॉन टी फाइनल. क्या करोगे अब? व्हाट इज द मास? हाउ मच इज द मास? यू डोंट नो. तुमको वैसे भी चेंज इन एंट्रोपी ऑफ आइस चाहिए, तो आइस का जितना मास था वो लिखना पड़ेगा ना. 100. लैटेंट हीट इज, लेट अस से 80. व्हाट इज टी फाइनल? 50 डिग्री. हाउ मच इज 15 केल्विन? 323. तो डेल्टा एस इज एस फाइनल माइनस एस इनिशियल. पक्का पक्का पक्का. श्योर श्योर. गुड. गलत आएगा ये. सेकेंड केस में, हाँ तो इसलिए तो बोला गलत आएगा. दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, दैट द आंसर विल नॉट मैच, और इफ इट मैचेस इट विल बी रॉन्ग की. लेट अस डू. देख तो लेते हैं कि अगर ऐसा गलती हुआ तो वो आता है क्या आंसर, क्या आता है देखते हैं. हाँ, सेकंड केस में तुम क्या बोल रहे हो? सेकंड केस में तो इन्फॉर्मेशन तुम्हारे सौ कुछ तो है ही नहीं, तो चलो चेक तो कर लो. इनको सब्ट्रैक्ट करोगे, फाइनल और इनिशियल में कॉमन पैरामीटर्स कौन है? 100 इंटू 80, वो बाहर आ गया. फाइनल में कौन है? 323 माइनस 1 अपॉन 273. सब्ट्रैक्ट कर लो. 100 इंटू 80 और ये 50, वो आने वाला था एम एस डेल्टा टी, तो -50 अपॉन 323 इंटू 273. अभी तुमने लास्ट क्वेश्चन में 1000 इंटू 80 अपॉन 273 किया था, कितना आया था? 293. यहाँ पे 100 इंटू 80 है तो 29.3. 29.3 इंटू 50 मतलब 293 इंटू 5. 293 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 323 डिवाइडेड बाय 323. देखते हैं क्या आता है. देखते हैं. तो ये आ गया आपका. यही है. गुड. 293 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 323. कितना आया? 4.5. कितना आया? 4.5. 4.5 तो आंसर में है, लेकिन प्लस कि माइनस? यहाँ पे अटक जाओगे अब. तो ये तो 4.5 आ ही रहा है, हमारा आ रहा है -4.5. डू यू हैव दिस क्वेश्चन इन मॉडल? है? आंसर की चेक करो. माइनस और प्लस में से एक आएगा. वही तो, दैट इज द थिंग. वही तो बताना है. पॉजिटिव आया. वेरी गुड. वही तो बताना था. तो ये मेथड करेक्ट है. नथिंग इज रॉन्ग. व्हाट इज रॉन्ग? लुक, ये सही है. नथिंग रॉन्ग. प्रॉब्लम क्या है? टेम्परेचर बढ़ा. टेम्परेचर बढ़ने से डिसऑर्डरनेस बढ़ता है, तो चेंज इन एंट्रोपी में ना ऐसा उल्टा लिखते हैं, इनिशियल एंट्रोपी माइनस फाइनल एंट्रोपी, ऐसा करते हैं अगर टेम्परेचर बढ़ रहा होगा तो. बराबर करेक्ट. नहीं तो एक काम करना, एस फाइनल माइनस एसेंशियल लिख लिया ना आपने, तो जो भी आंसर आया उसके आगे क्या लगा दोगे? और एक माइनस. गुड. तो रिमेंबर, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से डिसऑर्डरनेस बढ़ता है, इसके लिए यू राइट द अदर वे राउंड. अदर वे राउंड लिखा. अदर वे राउंड एस इनिशियल माइनस फाइनल, तो यू विल राइट डाउन हियर 323 और यहाँ पे 273. बाकी सब सेम है, तो योर आंसर विल बी +4.5. तो आ गया आंसर ऑप्शन नंबर बी.
तो याद रखना, टेम्परेचर बढ़ेगा तो डिसऑर्डरनेस बढ़ेगा। यहाँ पे टेम्परेचर 0 से 50 हुआ था तो डिसऑर्डरनेस बढ़ेगा, तो चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव आना चाहिए। चेंज इन एंट्रोपी क्या आना चाहिए? पॉजिटिव। अगर टेम्परेचर कम होगा तो चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा? नेगेटिव। ये याद रखना। इसके लिए हम इसको एस इनिशियल माइनस एस फाइनल लिखते हैं। और नंबर 2, थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि आपको पहले बोला है आइस, फिर आइस मेल्ट होके पानी में कन्वर्ट हो गया और वो एक बकेट ऑफ वाटर में गया। तो फिर हमने दूसरे केस में वाटर का कैलकुलेशन क्यों नहीं किया, हमने आइस का ही क्यों किया? आपको क्लियरली बोला है फाइंड द चेंज इन द एंट्रोपी इन द फॉलोइंग प्रोसेस। 100 ग्राम ऑफ आइस इज गेटिंग कन्वर्टेड टू वाटर, तो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ आइस नॉट ऑफ वाटर। उल्टा पूछा होता, इफ वाटर इज गेटिंग कन्वर्टेड टू आइस, तो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ वाटर होता। और वैसे भी तुमको यहाँ पे वाटर का मास दिया नहीं है, तो वाटर का एंट्रोपी निकालोगे कैसे? मास की जरूरत पड़ेगी ना वहाँ पे। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस सिंपल थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड। A container with rigid walls is covered with perfectly insulating material. So you have a container with rigid walls and it is covered with perfectly insulating material. The container is divided into two parts by a partition. One part contains a gas while the other is fully evacuated. मतलब वैक्यूम है। द पार्टिकल इज सडनली रिमूव, फ्री एक्सपांशन होने वाला है। द गैस रशेस टू फिल द एंटर वॉल्यूम एंड कम्स टू इक्विलिब्रियम आफ्टर अ लिटिल टाइम। इफ द गैस इज नॉट आइडियल, then the initial internal energy of the gas equals to its final internal energy. The initial temperature of the gas equals its final temperature. The initial pressure of the gas equals its final pressure. The initial entropy of the gas equals its final entropy. बताओ क्या होगा? कितना सोच रहे हो? व्हाट इज चेंज इन एंट्रोपी? फॉर्मूला बताओ मेरे को, व्हाट इज चेंज इन एंट्रोपी? डेल्टा क्यू बाई टी। सही है, इंसुलेटिंग है, हीट अंदर से बाहर नहीं, बाहर से अंदर नहीं, ठीक है, पक्का। और फ्री एक्सपांशन है, फ्री एक्सपांशन में तो वर्क भी नहीं होता। तो डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या आएगी? डेल्टा क्यू की वैल्यू 0 हो तो डेल्टा एस की वैल्यू क्या हो गई? 0। डेल्टा एस 0 मतलब एंट्रोपी चेंज हुआ क्या? नहीं। तो आंसर क्या आएगा? इनिशियल एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इक्वल्स इट्स फाइनल एंट्रोपी। पक्का? श्योर? गुड, 100%। व्हाट इज चेंज इन एंट्रोपी का फॉर्मूला? व्हाट इज चेंज इन एंट्रोपी का फॉर्मूला? डेल्टा क्यू बाय टी। इंसुलेटिंग है क्या? यस। इंसुलेटिंग में हीट एक्सचेंज होता है क्या? नहीं। और प्रोसेस कौन सा है? फ्री एक्सपांशन। फ्री एक्सपांशन में वर्क होता है क्या एक्सपांशन के लिए? नहीं। तो जब वर्क डन भी 0 है, एज यू रिमेंबर फ्री एक्सपांशन में वर्क डन डेल्टा यू और डेल्टा क्यू सबकी वैल्यू 0 होती है। तो जब डेल्टा क्यू 0 है तो चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा क्यू बाई टी होता है। तो डेल्टा क्यू बाई टी 0 आ गया, मतलब चेंज इन एंट्रोपी 0 है, तो इनिशियल और फाइनल एंट्रोपी क्या है? सेम है। Next question. Okay. Finally, we are at a good question. Of course, it is a good question. It is simple also. Refer to the Carnot cycle of ideal gas as shown in figure. By the way, अभी Carnot cycle की बात कर ही रहे हैं तो I'll tell you one thing. हमने 3 टाइप के इंजन देखे थे। एक था जनरल, नाम में था जनरल हीट इंजन, दूसरा था कार्नोट इंजन, तीसरा था स्टर्लिंग साइकिल। अब थोड़ा कंफ्यूजन रहता है यहाँ पे। जनरल हीट इंजन का नाम है जनरल, मैं तभी आपको बताया था कि उसके जो 4 स्ट्रोक है, एक में है आइसोकोरिक हीट एब्सॉर्प्शन, फिर दूसरा है, मैंने तुमको दूसरे टाइम बताया था कि वो आइसोथर्मल भी हो सकता है, वो एडियाबैटिक भी हो सकता है, डिपेंड्स फ्रॉम इफ यू आर टॉकिंग अबाउट थ्योरेटिकल इंजन और अबाउट प्रैक्टिकल इंजन। तो मैंने तुमको बताया था दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से वो जो एक्सपांशन था, पहले आइसोकोरिक हीट एब्जॉर्प्शन था, आइसोकोरिक हीट एब्जॉर्प्शन था, उसके बाद एक्सपांशन था। तो एक्सपांशन एडियाबैटिक भी हो सकता है, आइसोथर्मल भी हो सकता है। आपके टेक्स्ट बुक में आइसोथर्मल दिया हुआ है, करेक्ट, राइट। उसका हीट रिजेक्शन था, उसके बाद वापस से कंप्रेशन था, तो आपके टेक्स्ट बुक में वो आइसोथर्मल कंप्रेशन दिया हुआ है, बराबर, राइट, ये याद रखना आप। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, लेट WA to B, WB to C, WC to D and WD to A represent the work done by the system
during the process A to B, B to C, C to D and D to A respectively. Consider the following relations: work done from A to B plus work done from B to C plus work done from C to D plus work done from D to A greater than 0. Work done from A to B plus B to C plus C to D plus D to A less than 0. Work done from A to B, C to D greater than 0. Work done from B to C, D to A equal to 0. एक एक करके वेरीफाई करते हैं. वर्क डन फ्रॉम ए टू बी एक्सपेंशन है, वर्क डन बाय द गैस है, पॉजिटिव वर्क होता है. क्या होता है? पॉजिटिव वर्क होता है. और ये भी एक्सपांशन है, क्या होता है? पॉजिटिव वर्क होता है. उसके बाद ये कंप्रेशन है, नेगेटिव वर्क होता है. और ये भी कंप्रेशन है, नेगेटिव वर्क होता है, लेकिन पॉजिटिव वर्क ज़्यादा, नेगेटिव वर्क कम है. पॉजिटिव वर्क ज़्यादा, नेगेटिव वर्क कम है, तो सबका एडिशन करके क्या आएगा? ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव. मैं ऐसे लॉजिकली भी बताऊँ एक चीज़. फिर तुमने इंजन बनाया क्यों? तुमने इंजन क्यों बनाया? तुमको फाइनली आउटपुट में क्या चाहिए? वर्क. मतलब आउटपुट में वर्क कौन करने वाला है? बाय द गैस. तो तुम इंजन बनाते ही इसलिए कि तुमको मैकेनिकल वर्क एट द आउटपुट चाहिए. तो मैकेनिकल वर्क एट द आउटपुट विल बी पॉजिटिव ओनली. अगर नेगेटिव आ गया, इसका मतलब क्या होता है कि तुमने सिस्टम पे वर्क कर दिया, उल्टा कर दिया, उल्टा. तो याद रखना, हीट इंजन बनाते ही इसके लिए है कि हमको ज्यादा वर्क डन बाय द गैस मिले और लेस वर्क डन ऑन द गैस हो, तब जाके गाड़ी चलेगी आगे. नहीं तो उल्टा हो जाएगा. उल्टा हो गया ना तो तुम गाड़ी में पेट्रोल डीजल डालते रहो, अपनी जगह पे खड़ा है गाड़ी, सिस्टम उस पर वर्क करवा के दे रहा है. करेक्ट. तो ये तो लॉजिकली पहला स्टेटमेंट. You should laugh while reading this statement because if you understand, of course, overall work done should be by the gas. तो greater than 0 होना चाहिए. अगर पहला करेक्ट है तो दूसरा करेक्ट नहीं हो सकता है. This is right, this is wrong. Work done from A to B, of course पॉजिटिव वर्क है, एक्सपांशन हो रहा है. Work done from C to D, ये नेगेटिव वर्क है, लेकिन पॉजिटिव वर्क ज़्यादा है क्योंकि एरिया अंडर कर्व ए भी ज़्यादा है, सी डी कम है, तो ये भी एडिशन क्या होगा? पॉजिटिव होगा. बराबर है. वर्क डन फ्रॉम B to C, B to C and then D to A equal to 0. नहीं होता है. नहीं होता है. होता है कि नहीं होता है? कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है. अरे वर्क डन फ्रॉम B to C और D to A, ये दोनों का एडिशन 0 होता है कि नहीं होता है? यस, नो, यस. क्योंकि अगर बोलोगे होता है तो ऑप्शन सी, अगर बोलोगे नहीं होता है तो ऑप्शन ए. यू मस्ट नो, यू शुड नो, it is equal in magnitude. B to C is positive work, D to A is negative work, they are equal. तो फिर करते क्यों है? सिर्फ इसलिए करते हैं कि गैस को हम लोग इनिशियल स्टेट पे वापस ले जा सकें, क्योंकि 2 बार एक्सपांशन हो गया तो 2 बार कंप्रेशन होना ही पड़ेगा. तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर देन? 1, 3 and 4. गुड. पक्का? श्योर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question, we will first go to NEET वाले questions, then we will jump to JEE Mains. तो पहले हम लोग जाएंगे NEET पे. अभी जो NEET का पहला ही क्वेश्चन है 2015, ये क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट है. आपके इस साल के अपडेटेड मटेरियल में हो सकता है कंप्लीट हो, मेरे यहाँ पे नहीं है. Figure shows below 2 paths that may be taken by a gas to go from A to C. तो A to C डायरेक्टली भी जा सकता है, A to B to C भी जा सकता है. अभी क्या पूछा है मेरे यहाँ तो नहीं है, आपके यहाँ पे प्रिंटेड है क्या? नहीं. तो ठीक है, गेस, विल गेस. दो ही चीज़ पूछ सकते हैं. एक तो पूछ सकते हैं कि A to C जाने में कितना वर्क हुआ, या पूछ सकते हैं कितना हीट एब्जॉर्ब हुआ. बाकी तो कुछ पूछ नहीं सकते हम. तो विल चेक, विल चेक. कोई बात नहीं, हम लोग चेक कर लेंगे. तो बताओ अभी, चलो वर्क डन निकाल लेते हैं पहले. व्हाट इज वर्क डन? हाउ डू यू फाइंड आउट वर्क डन? व्हाट इज वर्क डन इन दिस केस?
Figure below shows two paths that may be taken by the gas to go from state A to state C. Two paths. तो जब मैंने बोला वर्क डन क्या है तो तुमने पहले ये पूछना चाहिए था कौन सा पाथ, ए टू बी टू सी कि डायरेक्टली ए टू सी। दोनों सेम नहीं हो सकते ना, दोनों सेम नहीं हो सकते। वर्क डन इज पाथ डिपेंडेंट, कल तो क्वेश्चन देखा था हमने। वो पहले तो ये बताना चाहिए कौन सा पाथ। तो ये जो क्वेश्चन है अनफॉर्चुनेटली इट कैन नॉट बी सॉल्व। क्यों नहीं सॉल्व हो सकता, मैं थोड़ा सा लॉजिकली समझ लो। पहले तो क्या पूछा है वही पता नहीं। हम्म? पता ही नहीं है। सपोज हमने गेस भी किया, गेस कर लो कि चलो पूछा होगा व्हाट इज द हीट एब्जॉर्ब, मतलब क्यू। अब क्यू फाइंड करने के लिए तुमको लगेगा डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। अब डब्ल्यू तो तुम फाइंड कर लोगे, ग्राफ से मिल जाएगा। लेकिन डेल्टा यू फाइंड करने के लिए यू रिमेंबर एन सी वी डी टी। अब टेम्परेचर तो नहीं पता, चलो टेम्परेचर भी तुम फाइंड कर लोगे फाइंड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे फाइंड करोगे, पी वी इक्वल टू एन आर टी सी, चलो वो भी मिल जाएगा। पर तुम गैस का टाइप भी तो नहीं बताया। गैस का टाइप तो बताना चाहिए कम से कम। अगर गैस का टाइप पता होगा तो फिर तुमको डिग्री ऑफ फ्रीडम पता होगा तो तुमको डेल्टा भी मिल जाएगा, क्योंकि यू रिमेंबर डेल्टा इज एन सी वी डी टी। तो सी वी डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ गैस। तो गैस का टाइप भी नहीं बोला है, मोनो एटॉमिक है डायटॉमिक है वो भी नहीं बोला है। तो अनफॉर्चुनेटली ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो सकता बिकॉज वी डोंट हैव सफिशिएंट डेटा, समथिंग इज मिसिंग। तो ये नहीं हो पाएगा सॉल्व। विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज सिंपल, और ये सेम क्वेश्चन सीईटी के सेट में भी है। अ सैंपल ऑफ आइडियल मोनोटॉमिक गैस, देखो यहाँ पता है ना मोनोटॉमिक, मोनोटॉमिक ओके, इज टेकन राउंड द साइकिल ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए। बोला ए बी सी ए है और डायग्राम में ए से बी ए दिखाया है। गुड, ये भी गलत है लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। द वर्क डन ड्यूरिंग द साइकिल इज, वर्क डन ड्यूरिंग वन साइकिल इज एरिया ऑफ द लूप। वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, एरिया ऑफ लूप। वेरी गुड, व्हाट इज एरिया ऑफ लूप, एरिया ऑफ ट्राइंगल। So work done in one cycle is area of loop, which is area of triangle ABC. How do you find out area of triangle ABC? Half base into height. Base into height. What is the base in this case? What is base in this case? ये इतना base है. AC is base. What is height? CB is height. CB is height. Half AC. How do you find out AC? ये तो कोई वॉल्यूम एक्सिस है तो 3V में से V गया, 3V में से V गया, तो 3V माइनस V इज द बेस। हाइट, हाइट ये 4P था और ये P था, तो 4P माइनस P, ये हो गया 2V। 2V बाई 2 इज V, 2V बाई 2 इज V, V और वो 3, तो 3PV, इट इज 3PV। ऑप्शन नंबर बी। चलो अगला क्वेश्चन। Before I go to the next question, I have a question for you now. I have a question that I should ask you now, before it is too late and I forget to ask. Yes, this one. ये statement number 4 equal to 0 कैसे आया? Did you really understand? कैसे आया? तुमने बोला समझ में आया, तो बताओ कैसे आया? एडियाबैटिक एक्सपांशन में और एडियाबैटिक कंप्रेशन में वर्क सेम क्यों होता है? मतलब तुमको ऑनेस्टली स्पीकिंग तुमको कार्नोट इंजन समझा ही नहीं है। उन्होंने कार्नोट साइकिल बोला था, अच्छे से पढ़ना चाहिए था। तो यू हैव नॉट रियली अंडरस्टूड व्हाट इज द फर्स्ट स्ट्रोक। फर्स्ट स्ट्रोक आइसोथर्मल
आइसोथर्मल एक्सपांशन, तो मैं अगर बोलता हूँ ये P1 V1 T1 टेम्परेचर है, तो B पे क्या आएगा P2 V2 T1। ये आइसोथर्मल एक्सपांशन था। उसके बाद क्या था एडियाबैटिक एक्सपांशन। एडियाबैटिक एक्सपांशन अगर था वो, तो यहाँ पे क्या आएगा P3 B3 T2, याद रखना T2। तो यहाँ पे टेम्परेचर T1 से कहाँ गया T2, कहाँ गया T2, कहाँ गया T2, और ये एक्सपांशन है, वर्क डन इज पॉजिटिव। व्हाट इज वर्क डन इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस? NR अपॉन 1 माइनस गामा फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, T2 माइनस T1। तो NR अपॉन 1 माइनस गामा T2 माइनस T1। उसके बाद था क्या, क्या था उसके बाद, जल्दी बोलो। आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल कंप्रेशन मतलब यहाँ पे P4 V4 और T2 आइसोथर्मल, आइसोथर्मल सेम टेम्परेचर। फिर उसके बाद तुम यहाँ से यहाँ आ गए, आएंगे यहाँ से यहाँ, करेक्ट। देन यू हैव एडियाबैटिक कंप्रेशन P1 V1 T1 P1 V1 T1। तो ये D to A जो एडियाबैटिक प्रोसेस हुआ उसमें वर्क डन कितना हुआ NR अपॉन 1 माइनस गामा, फाइनल टेम्परेचर T1 है, इनिशियल टेम्परेचर T2 है इस केस में, T1 माइनस T2। वहां पे कितना था T2 माइनस T1। डू यू सी दे आर सेम ओनली विद माइनस साइन। तो वर्क डन फ्रॉम B to C it was NR upon 1 minus gamma T2 minus T1, and from D to A is NR upon 1 minus gamma T1 minus T2। then you add these two, क्या आएगा? इसलिए जीरो, क्योंकि दो स्ट्रोक आइसोथर्मल थे और वो कार्नोट नहीं बोला होता तो फिर ये फोर्थ नंबर इट मे नॉट बी ट्रू। कार्नोट है तो दो आइसोथर्मल है, इसलिए दो ही टेम्परेचर है, इसके लिए B to C और D to A में वर्क डन की वैल्यू सेम होती है, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। इसीलिए कार्नोट नहीं बोला होता तो फोर्थ स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगा। फिर आंसर क्या आएगा ए, क्या आएगा ए। अभी क्लियर है क्या, पक्का? तो नहीं समझा तो हर चीज को हाँ क्यों बोलते हो, हाँ समझा समझा, कैसे समझा, नहीं समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। थर्ड, अभी मुझे चेक करना पड़ेगा एक एक से पूछ के कि कितना समझा कितना नहीं समझा। अ सिस्टम इज टेकन फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट सी बाय टू पार्ट्स, एक तो ADC है एक ABC है। क्वेश्चन जैसे पढ़ा ना, अभी थर्मोडायनामिक्स में ऐसा है कि डायग्राम देखा, क्वेश्चन पढ़ा, पहला स्टेटमेंट पढ़ा, तुमको कुछ कुछ तो समझ में आ जाएगा। A और C, तुम पाथ AD से जाओ तुम पाथ ABC से जाओ, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स सेम। इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम होने का मतलब होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम, एनर्जी का चेंज क्या है सेम है। लेकिन तुमने दो पाथ लिए तो वर्क डन इज नॉट सेम, वर्क डन इज नॉट सेम। तो क्या बोला है देखो, द इंटरनल एनर्जी एट ए इज, ए स्टेट पे कितना एनर्जी है 10 जूल। Along the path ADC, the amount of heat absorbed is delta Q1 which is 50 joule, and the work done obtained मतलब work done by the gas, work done by the gas कितना है 20 joule। Whereas along path ABC, the heat absorbed is 36 joule। The amount of work along path ABC is, तो ABC पाथ के along कितना वर्क हुआ ऐसा आपसे पूछा है। गुड, मैं क्वेश्चन एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। ये एक पीवी डायग्राम है, दो पाथ है ADC एंड ABC। तो दो पाथ है ना, तो एक काम करो, दो पाथ है तो दो पाथ लिख दो, ABC और ADC, ABC एंड ADC, यू हैव टू पाथ। गुड, आपको क्या पूछा है, आपको पूछा है व्हाट इज द वर्क डन अलोंग पाथ ABC। तो अलोंग पाथ ABC मतलब W2 की वैल्यू पूछी है, और ADC इस पाथ के अलोंग कितना हीट एब्जॉर्ब हुआ डेल्टा Q1 कितना है 50 जूल, और इस पाथ के अलोंग वर्क डन W1 कितना हुआ, कितना हुआ, कितना हुआ 20 जूल। करेक्ट, पक्का सर 100%। आपको बोला है कि इनिशियल एनर्जी एट ए इज हाउ मच, हाउ मच, ए पे कितना है 10 जूल है। अगर इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है और जो सेम है ABC और ADC, इनिशियल इज ए फाइनल इज सी, इनिशियल इज ए फाइनल इज सी,
तो जब इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम हो तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज सेम। पक्का? श्योर? गुड। वर्क डन दे आर नॉट सेम, इसलिए तो पूछा है। सेम होता तो पहले केस का वर्क डन कितना 20, तो दूसरे में भी 20 लिख देते, फिर सेम नहीं होता ना, वर्क डन इज पार्ट डिपेंडेंट। तो अब यहां से तुमको क्या मिलेगा? यू नो व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? डेल्टा Q1 इक्वल्स टू डेल्टा U1 प्लस W1। तो व्हाट इज डेल्टा U1? डेल्टा Q1 प्लस W1 है ना, माइनस व्हाट इज डेल्टा Q1? 50 एंड दिस इज 20, तो कितना हो गया 30। व्हाट इज टोटल चेंज? टोटल चेंज कितना है? कितना है? 30 जूल। कितना है? 30 जूल। और ये लिखने की जरूरत क्या थी तुमको? कितना हीट एब्जॉर्ब हुआ? कितना हीट एब्जॉर्ब हुआ? 50 बराबर। उसमें से कितना वर्क हो गया? 20, तो बचा कितना? 30, तो 30 बराबर। अब W2 फाइंड करना है। वापस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डेल्टा Q2 इक्वल्स टू डेल्टा U2 प्लस W2, मतलब W2 इक्वल्स टू डेल्टा Q2 माइनस डेल्टा U2। लेकिन इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम होने की वजह से डेल्टा U2 एंड डेल्टा U1 आर सेम। तो W2 equals to what is delta Q2? How much is heat absorbed in the second case? कितना? 20। कितना? अरे heat absorbed second case 36, 36, 36, 36 में से कितना माइनस करोगे? कितना माइनस करोगे? 30, तो कितना होगा? 6 जूल। 6 जूल। ऑप्शन नंबर ए। बस। नेक्स्ट क्वेश्चन। A sample of 0.1 gram of water at 100 degrees Celsius and normal pressure requires 54 calorie of heat energy to convert to steam at 100 degrees Celsius. If the volume of steam produced is 167.1 cc, cc is cubic centimeter cube, which is also cubic capacity. आपकी गाड़ी का जो इंजन होता है ना 150 सीसी, 100 सीसी, ये सब सीसी मतलब क्यूबिक कैपेसिटी होता है, मतलब सेंटीमीटर क्यूब होता है, मतलब सिलेंडर का साइज बता रहे हैं आपको। सिलेंडर विल हैव सम वर्किंग सब्सटेंस इन दैट। बड़ा सिलेंडर होगा तो उसका क्यूबिक कैपेसिटी ज़्यादा होगा। तो आप जब गाड़ी लेने जाते हो तो अलग अलग सीसी का गाड़ी होता है। ऑफकोर्स 100 सीसी, देन 125, देन 150, देन 180, 200, 220, ये सब मैं आपको बेसिकली बजाज का पल्सर का मॉडल बता रहा हूँ। 100 नहीं आया, पता नहीं। जितना ज़्यादा सीसी उतना ज़्यादा पावरफुल इंजन, दैट इज व्हाट इट मीन्स। एनीवेज, ऐसा बोला है द चेंज इन इंटरनल सैंपल इज। तो वापस एक बार क्वेश्चन समझ लो। हमारे पास ना 0.1 ग्राम ऑफ वाटर था 100 डिग्री पे और नॉर्मल प्रेशर पे। इसको कन्वर्ट होने के लिए, किस में कन्वर्ट होने के लिए? स्टीम में कन्वर्ट होने के लिए कितना एनर्जी चाहिए? 54 कैलोरीज। करेक्ट। देन अगर इफ द वॉल्यूम ऑफ स्टीम प्रोड्यूस, तो जब वाटर का कन्वर्जन स्टीम में हो गया तो जो स्टीम का वॉल्यूम है वो कितना है? 167.1 सीसी। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सैंपल इज। ये क्वेश्चन तुमने स्टेट बोर्ड में सॉल्व किया हुआ है, स्टेट बोर्ड में सॉल्व किया है, सॉल्व किया है। ये वैल्यूज भी सेम थे। एग्जाम्पल 9.3 आपका, सॉरी 4.3 थर्मोडायनामिक्स चल रहा है ना, तो 4.3 आपका महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल 4.3 और ये एग्जाम्पल सेम है, सेम है। ओके, क्या पूछा है? क्या पूछा है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैसे फाइंड करोगे? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? Q equals to Q equals to डेल्टा U प्लस W। वेरी गुड। तुमको क्या पूछा है? डेल्टा U मतलब Q माइनस W। यहाँ तक क्लियर? क्या पक्का पक्का? श्योर श्योर 100%। हाउ डू यू फाइंड आउट Q? इट इज ml। ml माइनस वर्क डन। उन्होंने क्लियरली मेंशन किया, ये जो सैंपल ऑफ वाटर था 100 डिग्री पे,
वो नॉर्मल प्रेशर पे था और पूरे प्रोसेस में कहीं पे भी प्रेशर चेंज हुआ बताया नहीं बताया, बताया नहीं। वॉल्यूम चेंज हुआ, यस। प्रेशर चेंज हुआ, नो। तो प्रोसेस क्या है? आइसोबारिक। और आइसोबारिक में ये होता है पीडीवी। क्या होता है ये? पीडीवी। अब m is mass and how much is the mass? 0.1 and L is the latent heat and how much is the heat required? कितना? 54 कैलोरी। 54 कैलोरी। तो latent heat of vaporization कितना है? 54 कैलोरी माइनस P। what is P? 1.013 into 10 raised to 5. How much is the change in volume? Change in volume, it is 167.1 minus फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। मैं जानबूझ के सर थोड़ा सा फिल इन द ब्लैंक्स रख रहा हूँ, बताता हूँ क्यों। आंसर किस में है? जूल में। किसमें है? जूल में। तुम्हारे पास मास था ग्राम में और लैटेंट हीट था कैलोरी में, नहीं चलेगा। मास को किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा और कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसके लिए यहाँ रखा है। दूसरा वो सीसी में था, क्यूबिक कैपेसिटी में था, वो भी नहीं चलेगा। तो फाइनल वॉल्यूम कितना है? 167.1 क्यूबिक सेंटीमीटर। वो मीटर क्यूब में लाना पड़ेगा, ये सेंटीमीटर क्यूब में, तो ये भी नहीं चलेगा। नंबर 2 इनिशियल वॉल्यूम, तुमको पता ही नहीं है। पता क्या इनिशियल वॉल्यूम? नहीं। तो ये करेक्ट है, गलत कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ मैं अलग अलग से लिखूंगा सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन एट ऑल। तो व्हाट आई विल डू इज मैं इसको अलग अलग से कैलकुलेट कर लेता हूँ। Q is ml, m is 0.1 gram, 0.1 gram in kilogram, 10 raised to minus 4. 1 gram is 10 raised to minus 3, so 0.1 is 10 raised to minus 4. And this is 54 calorie. You know the conversion factor from joule to calorie? 1 calorie is 4.2 joule. So 4.2 joule. Pakka? Sure. 100%. 1 calorie is 4.2 joule. तो ये कितना आ गया आपका? 54 इंटू 4.2, 54 इंटू 4.2, 200 समथिंग। ठीक है, 200 समथिंग मैं एग्जैक्ट करूंगा। 54 इंटू 4.2, 226.8 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 4, 226.8 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 4। ठीक है, गुड। अभी हाँ बोल रहे हो, थोड़ा देर में समझेगा कि ठीक नहीं है। व्हाट इज वर्क डन? पीडीवी। व्हाट इज पी? 1.013 into 10 raised to 5। फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम कितना था? फाइनल वॉल्यूम कितना था? हाउ मच इज द फाइनल वॉल्यूम? हाउ मच इज द फाइनल वॉल्यूम? कितना है फाइनल वॉल्यूम? 167.1 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 167.1 इंटू 10 रेज़ टू हाउ मच? माइनस 6 मीटर क्यूब आ गया। हाउ अबाउट इनिशियल वॉल्यूम? दैट इज इंपॉर्टेंट। व्हाट अबाउट इनिशियल वॉल्यूम? व्हाट इज इनिशियल वॉल्यूम? हमको क्या पता? तो पता लगाओ फिर, तुमको क्या पता। तो व्हाट इज डेंसिटी? मास अपॉन वॉल्यूम। तो व्हाट इज वॉल्यूम? मास अपॉन डेंसिटी। सही है, करेक्ट, पक्का, श्योर। तो अब 0.1 ग्राम ऑफ वाटर। व्हाट इज मास ऑफ वाटर? 0.1। व्हाट इज डेंसिटी ऑफ वाटर? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। व्हाट इज द इनिशियल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड? 0.1 सेंटीमीटर क्यूब। ये ऐसा है, सीजीएस में था इसलिए सेंटीमीटर क्यूब। तो ये कितना आएगा? 0.1 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 6 मीटर क्यूब। तो ये मिल गया आपको इनिशियल वॉल्यूम। दिस इज इनिशियल वॉल्यूम। ओके, ये आ गया आपका इनिशियल वॉल्यूम। आ गया क्या? यस। देयरफॉर वर्क डन इक्वल टू पीडीवी, मतलब P into V2 minus V1, V final minus V initial, whatever you're writing V final minus V initial, okay, V final minus V initial. What is P? 1.013 into 10 raised to 5. What is final volume? 167.1
इनिशियल कितना है 0.1 और दोनों में 10⁻⁻⁶ था तो है गुड, वेरी गुड। तो ये हो गया 1.013 इंटू 10⁵ और ये 10⁻⁻⁻⁶ तो -1 और ये कितना आया 167। तो 167 इंटू 10⁻⁻1 is 16.7, 16.7 इंटू 1.013 कितना आ गया 16.91, 16.91 जूल आ गया। अब तुमको फाइंड क्या करना था डेल्टा यू विच इज क्यू माइनस डब्ल्यू। क्यू कितना आया 226.8 इंटू 10⁻⁻⁴ मतलब 0.0226, 0.0226 और वो कितना है 16.91। तो आंसर है क्या? नहीं है। कहाँ है 81? तो कैलोरी को जूल में तो कन्वर्ट करोगे ना। हाँ ओके, वेरी गुड। पहली गलती 54 कैलोरी, वही गलती है कि ये तुमको नहीं लिखना है, टोटल हीट दिया हुआ है। वैसे फिर भी लेट अस सी, लेट अस चेक। तो कितना है 226.8 जूल, इसमें कितना माइनस होगा 16.91। तो आंसर क्या आना चाहिए? अरे 226 में से 18 निकालने के लिए बोल रहा हूँ मैं तुमको, 16 निकालने के लिए बोल रहा हूँ, तो 210 के आसपास आसपास है क्या? चेक करो आंसर है क्या। बी। तो ये जो गलती हुई, ये टोटल आपको हीट दिया था कन्वर्ट करने के लिए, तो सीधा सीधा मास से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी, आपको सिर्फ कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करना था। दैट इज वेयर वी हैव टू डू दिस करेक्शन। हो गया खत्म, सबट्रैक्ट कर लो दोनों को। अब therefore you have change in energy equals to q minus w। what is q? 226 point something something 8, इसमें से 16.91 माइनस कर लो तो 208 पॉइंट समथिंग समथिंग जूल आएगा। ऑप्शन नंबर बी। तो अभी अगेन आई जस्ट वेरी क्विकली एक्सप्लेन कि यहाँ पे हमने मास से क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया। ऐसा है, क्वेश्चन दो टाइप से पूछा जाता है और मैं जानबूझ के यहाँ सारे गलतियाँ करवा लूँगा आपसे। आई डू दिस ऑफ इंटेंशन सो दैट यू डोंट डू इट इन एग्जाम। नहीं तो एग्जाम में समझ में नहीं आता कि मास से मल्टीप्लाई करना है नहीं करना है। समटाइम्स दे विल इंटेंशनली टेल यू दैट द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज लेट अस से 2000 जूल पर किलोग्राम। मतलब 1 किलोग्राम वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए 2000 जूल ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। और बोल देंगे गिवन मास ऑफ वाटर इज हाफ के जी। तो अगर 1 kg को 2000 तो हाफ kg को 1000। तो वहां पे क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन दिया कैसे है उसके हिसाब से आपको क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। करेक्ट, बराबर, राइट। अगर 2 kg दिया होगा तो 4000, 3 kg दिया होगा तो 6000। यहाँ पे क्वेश्चन अगर आप पढ़ रहे थे, इन्होंने जानबूझ के पहले मास बोला सो दैट यू गेट कंफ्यूज। तो मास बताया 0.1, फिर बोला रिक्वायर 54 कैलोरी ऑफ हीट एनर्जी टू कन्वर्ट टू स्टीम। अब जिनको वो फॉर्मूला से भी याद कर लेते ना, m इंटू एल, m इंटू एल, वो m इंटू एल ही करके आने वाले हैं। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा, आपको समझ में आया होगा कि 0.1 ग्राम, टोटल 0.1 ग्राम को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए कितना लगा 54 कैलोरी। तो आपको डायरेक्टली ये 54 कैलोरी लेना था। गुड, राइट। अगर ऐसा बोला होता 54 कैलोरी पर ग्राम बोला होता, तो 54 कैलोरी पर ग्राम मतलब 1 ग्राम को कन्वर्ट करने के लिए कितना 54, तो 0.1 को कितना 5.4। सही है, तो उसको जूल में कन्वर्ट कर लिया और फिर हम लोगों ने वर्क डन भी निकाल लिया, वर्क डन मिल गया 16.91, सब्ट्रैक्ट कर दिया, है ना। नहीं तो इजी क्वेश्चन है। तो अभी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस पी वी रेज टू गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, टी वी रेज टू गामा माइनस 1 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। और मैंने ये भी बताया था आपको टी रेज टू गामा
P raised to 1 minus gamma equals to constant. ऑप्शन नंबर डी। लास्ट लेक्चर में दिया देखा हमने, ये भी इजी है। ड्यूरिंग एन एडियाबैटिक प्रोसेस द प्रेशर ऑफ गैस is found to be proportional to cube of its absolute temperature. See, look at the question. Adiabatic पहले बता दिया, मतलब टेंशन खत्म, adiabatic है। The pressure of gas is found to be proportional to cube of its absolute temperature. The ratio Cp by Cv is, तो आपको बोला है प्रेशर इज फाउंड प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सही है, पक्का, गुड। ये अभी याद रखना इसको। डू यू रिमेंबर, अभी रिमेंबर क्या, अभी देखा, याद है क्या, टेम्परेचर प्रेशर रिलेशन, P रेज टू गामा, P रेज टू 1 माइनस गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, है कि नहीं साहब? अब इस गिवन इक्वेशन को इस फॉर्म में लेके आओ, या तो इसको उस फॉर्म में लेके जाओ, चॉइस इज योर्स, आपकी मर्जी है। एक काम करेंगे, ऐसा करेंगे, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, P इक्वल्स टू सम कांस्टेंट और T रेज टू 3 न्यूमरेटर में, मतलब हम ऐसा कर सकते हैं ना, P या T रेज टू 3 यहाँ से डिनोमिनेटर में आया, वहां से न्यूमरेटर में गया, कर सकते हैं ना ऐसा? यस। अब इसको उस फॉर्म में लेके आओ। अब इसको उस फॉर्म में कैसे लाते हैं? इस इक्वेशन में प्रेशर का पावर क्या है, तो यहाँ पे 1 करो। कैसे 1 करोगे? टेकिंग 1 माइनस गामा रूट, टेकिंग 1 माइनस गामा रूट। जब 1 माइनस गामा रूट लोगे तो T रेज टू गामा अपॉन 1 माइनस गामा, P रेज टू 1 माइनस गामा अपॉन 1 माइनस गामा इक्वल्स टू बन जाएगा कांस्टेंट। तो T रेज टू गामा अपॉन 1 माइनस गामा P इक्वल्स टू हो जाएगा कांस्टेंट। इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 को कंपेयर कर लो। क्या P का पावर 1 है? यस। राइट हैंड साइड कांस्टेंट है? यस। तो T का पावर भी क्या होगा? सेम। तो कंपेयरिंग 1 and 2, comparing 1 and 2, you get gamma upon 1 minus gamma equals to -3. Sure, but then so solve करो, तो ये हो जाएगा gamma equals to -3 प्लस 3 gamma। 3 gamma में से gamma गया तो 2 gamma इक्वल्स टू, ये 3 इधर आ गया प्लस 3, तो gamma इक्वल्स टू कितना हो गया? 3/2। व्हाट इज gamma? Cp by Cv। तो Cp by Cv इक्वल्स टू 3/2, मतलब 1.5। देखो आंसर में होना चाहिए 3/2 है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। In the given volume temperature diagram, what is the relation between pressure P1 and P2? इस टाइप का क्वेश्चन आई रिमेंबर इफ वी हैव सॉल्व्ड दिस, है ना? तो चलो, जिनको याद नहीं है कोई बात नहीं, बट नॉट ऑलवेज यू शुड रिमेंबर दिस। वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर डायग्राम का अगर वो स्ट्रेट लाइन है, मतलब वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू T, मतलब प्रेशर इज कांस्टेंट, है। तो अभी आपको सिर्फ चेक करना है, आपको पूछा है P1 ज़्यादा कि P2 ज़्यादा, P1 ज़्यादा है कि P2 ज़्यादा, ऐसा पूछा है आपको। तो P1 और P2 में से किसकी वैल्यू ज़्यादा, तो मैंने बताया था आपको, क्या बताया था, सब भूल गए। Pv इक्वल्स टू nRT, तो V बाई टी इज nR बाई P। V बाई टी y बाई एक्स होता है स्लोप, ये होता है स्लोप। V बाई टी क्या होता है? स्लोप। y अपॉन एक्स क्या होता है? स्लोप। क्यों होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। मैंने बोल दिया आपको कि चलो एक पॉइंट ओरिजिन ले लो, x1 y1 0 0 हो गया, तो y2 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस 0, मतलब y बाई एक्स, y बाई एक्स स्लोप। हु इज ऑन द y एक्सिस हियर? वॉल्यूम। हु इज ऑन द x एक्सिस? टेम्परेचर। तो वॉल्यूम बाई टेम्परेचर मतलब कौन है? स्लोप। और स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तो जिसका स्लोप ज़्यादा उसका प्रेशर कम। तो P2 लाइन का स्लोप ज़्यादा है तो P2 की वैल्यू कम होगी, तो P2 लेस देन P1, मतलब P1 ग्रेटर देन P2। कब है? P2 लेस देन P1, ऑप्शन नंबर डी, डन। हमें सॉल्व किया ऑलरेडी क्वेश्चन,
किया है क्या? हाँ, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन। A gas is compressed isothermally to half its initial volume. A gas is compressed isothermally to half of its initial volume. V2 is given by 2. The same gas is compressed, same gas, gamma value same है, separately through an adiabatic process until its volume is again reduced to half. तो दोनों केस में V2 is given by 2, दोनों केस में so process is different. One is isothermal, other is adiabatic. Compressing the gas isothermally will require more work to be done. Compressing the gas through adiabatic process will require more work to be done. मतलब isothermal process में ज़्यादा work लगेगा, adiabatic में ज़्यादा लगेगा. Compressing the gas isothermally और adiabatically will require same amount of work done. मतलब दोनों में work done same होगा क्या? Which of the case, whether compression through isothermal or through adiabatic process requires more work will depend on the atomicity of the gas. क्वेश्चन समझा है क्या? क्या क्वेश्चन है? दो सेम गैस है, पहले केस में उसको कंप्रेस किया आइसोथर्मली टू हाफ द वॉल्यूम, दूसरे केस में भी कंप्रेस किया एडियाबैटिकली टू हाफ द वॉल्यूम. मैं जब ऐसा हाथ का इशारा भी करता हूँ ना तो तुमको समझना होता है. आई एम टेलिंग यू एडियाबैटिक का स्लोप ज़्यादा है, आइसोथर्मल का स्लोप कम है. तो इसलिए आई वेंट लाइक दिस, हियर आई वेंट स्टीप डाउन. गुड. तो दोनों केस में वर्क डन किस में ज़्यादा है, किस सेम है, कि वो डिपेंड करेगा एटोमिसिटी ऑफ द गैस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटोमिसिटी? नंबर ऑफ एटम्स. ओके, गुड. अब ऐसा है, देखो यहाँ पे गलती कैसी होती है, गलती भी होती है यहाँ पे, बताता हूँ कैसी होती है. यू सी, दिस इज एडियाबैटिक एंड लेट अस से दिस इज आइसोथर्मल. बराबर. तो आइसोथर्मल का स्लोप कम है कि नहीं कम? यस और नो? मैंने पहले ही बताया था, यस और नो. आई विल हैव टू प्रूव दिस कि सच में ऐसा होता है, मैं प्रूव करके देता हूँ, डोंट वरी, आई विल प्रूव दिस. लेकिन फिलहाल के लिए तो समझ लो, सही है. तो वर्क डन इन विच केस इज मोर? आइसोथर्मल, क्योंकि एरिया अंडर द कर्व इज मोर. इन विच केस इज कम? एडियाबैटिक. सही है, पक्का. तो आंसर क्या आएगा? वर्क डन इन आइसोथर्मल इज मोर देन एडियाबैटिक. गलत आंसर है, चेक कर लो, चेक कर लो, चेक. वर्क डन इन एडियाबैटिक इज मोर देन आइसोथर्मल. ऐसा दिया है क्या? दिया ऐसा क्यों? कंप्रेशन, ये एक्सपांशन का कर्व था, तुम कंप्रेशन की बात कर रहे हो. तो यू आर टॉकिंग अबाउट कंप्रेशन. तो कंप्रेशन में कैसा दिखेगा कर्व? कंप्रेशन में कर्व कैसा दिखेगा? आइसोथर्मल का स्लोप कम है, तुमने बोला आइसोथर्मल का स्लोप कम है, ऐसा है. ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, कंप्रेशन है, कंप्रेशन. और एडियाबैटिक का स्लोप ज़्यादा होता है, ये एडियाबैटिक है. अब बताओ, अब बताओ, वर्क डन ज़्यादा किस में है? एडियाबैटिक. तो वर्क डन इन एडियाबैटिक इज मोर देन isothermal if we are talking about compression, and work done in isothermal is more compared to adiabatic if we are talking about expansion. यहाँ पे किसकी बात हो रही थी? किसकी बात हो रही थी यहाँ पे? कंप्रेशन. तो किस में ज़्यादा वर्क हुआ? एडियाबैटिक. तो आंसर क्या आएगा? कंप्रेसिंग द गैस थ्रू एडियाबैटिक प्रोसेस विल रिक्वायर मोर वर्क टू बी डन. अब चेक करो, है क्या ऑप्शन बी राइट? बराबर, श्योर, डन. अब सच में एडियाबैटिक का स्लोप ज़्यादा होता है आइसोथर्मल से, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में चेक करेंगे. आई विल शो, आई विल प्रूव दैट स्लोप ऑफ एडियाबैटिक इज गामा टाइम्स ऑफ स्लोप ऑफ आइसोथर्मल. और ये नीट का और जेडब्ल्यू का क्वेश्चन है, PYQ. So that's it for today.